वापस जो रह गए थे. ओके, सो बिफोर दिस आई हैव अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू लास्ट क्लास, राइट? जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. So let me ask actually, okay? So Tuang child, or you can say Tuang baby, right? This is actually a member of which Homo sapien, or you can say Homo human species, is related to which member? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में. Yes, yes, okay, right. It will be Australopithecus, right? And here genus name is Africanus, okay? Africanus. And one more is the Lucy. So Lucy is belong to which group or member of which Homo species? Lucy or Tuang? Their Tuang baby actually this is the around 5 to 6 year old. Okay, this was a baby boy which is around 5 to 6 year approx. तो उन्हें सेंटेंस को ये मिला कहाँ था गाइस? इट विल बी फाउंड एट दी ईगल नेक्स्ट. ओके, तो उनके घोंसले में, नेक्स्ट के घोंसले में मिला. तो जब रिसर्चर ने इनको देखा तो दे में कंफ्यूज कि ये इतना छोटा स्कल है. इट विल बी उन्होंने गैस किया कि इट विल बी मंकी स्कल, राइट? मंकी स्कल उन्हें लगा. बट जब उनकी प्रॉपर स्टडी की गई इस स्कल की प्रॉपर, तो उनके कुछ फीचर्स लाइक टिथ के, स्कल के, ये उनके प्रोट्रूडिंग जॉ के, नोज के, ऐसे स्ट्रक्चर देख के स्कल के उन्होंने बोला कि नो, दिस इज दी एक्चुअली एस्ट्रोलोपिथिकस अफ्रीकैनस मेंबर का ये बेबी है, राइट? तो ऐसे एक लूसी मिली थी विच इज अ लेडी, राइट? लेडी ऑफ विच मेंबर? उनको पूरा होल बॉडी का स्कल मिला था, राइट? होल बॉडी स्केलेटन मिली थी. This is also same Australopithecus, but Afrensis, right? Not Africanus. Here, Tuang baby is related to Africanus, but here Australopithecus. Remember, A is always here a small letter, right? A. Afrensis. Okay, so this is related to the member of Australopithecus afrensis. And one more question, which one is the smallest होमो स्पीसीज? सबसे छोटे जो स्पीसीज थे जिनकी हाइट थी अप्रोक्स बहुत छोटी थी. होमो हेबिलस. यस यस, और उनका निक नेम भी था एक, वन विच वन इज द हॉबिट, राइट? इट मीन्स ड्वार्फ. ओके, ड्वार्फ मैन. एंड या दे आर होमो हेबिलस. Okay, but there are particular member of Homo habilis which we call as the Homo florensis. Okay, if ऑप्शन में आपको अगर ये दिखेगा तो आप इसको टिक करना, राइट? Florensis, which is also known as the hobbit. Hobbit means the dwarf man, right? And one more question, which is the most intelligent? अभी तक के जितने भी species मिले थे सबसे ज्यादा intelligent which homo species is there? Most intelligent means intelligence. How we measure their intelligence? By seeing their skull size, right? Skull size से हमें पता चला कि उनका brain size बहुत बड़ा है. तो it will be
more intelligent, right? तो उनको हम cranial capacity बोलते हैं, right? Cranial capacity. Okay, this will be Homo sapien, Homo sapien, which is also known as the Cro-Magnon. Okay, Homo sapien follis. Okay, and इनका दूसरा नाम था Cro-Magnon, right? Man. और इनका ये था cranial capacity is around 1650 cc cubic centimeter, right? Not cranial capacity. It will be measured into cubic centimeter. So most intelligent थे हमारे Cro-Magnon. So this is or and one more question, you have to know the sequence series, right? So इतने से आपके questions बन जाएंगे. होमो से जितने भी questions आएंगे, it will be somehow series. They may ask the order and you have to choose which one is the related to the Homo sapiens. Okay, Homo species. So unme Australopithecus, Ramapithecus, all these names are there. Okay, so let's start today class. I think this is enough. And so we have to see, we have confusion between different types of fossils, right? So there are generally two kind of fossils. First one is the body fossil, second one is dress fossil. First let me clear, last class we study actually two things. Which one is the first? Pseudo fossils, right? इसमें हमें doubt था pseudo fossil, and I was wrong. Pseudo fossil is different thing. Okay, pseudo fossils is not a trace fossil, right? Giri, clear? I was wrong Yes, ma'am. last class. Pseudo fossil is something different. Which is pseudo means क्या होता है guys? False. Okay. Like हमने कई ऐसा देखा है. Pseudo means pseudomorph, which is not changing morph, but we have to resemble like कि they are changing morph there. Morph means morphology. मतलब उनमें कोई changes आ रहे हैं. बट रियलिटी में उनमें कोई चेंजेस हुआ नहीं. तो सीडो मीन्स होता है फॉल. ऐसा रिजेंबल होता है कि या दे में चेंज but they were not changing any kind of morphological character, right? तो आपको pseudomorph ऐसा मिनरोलॉजी में पढ़े होंगे, pseudomorphic crystals, right? So pseudo means false. तो ऐसे fossils जो ऐसे कोई भी structure not fossil resemble होते कि या ये these are the same as the fossils but वो fossils होते नहीं है, right? So these are known as the pseudo fossils, like dendritic pattern. जो डेंड्रिक पैटर्न होते हैं ड्यू टू डिसोल्यूशन और ड्यू टू केमिकल एक्शन, राइट? समथिंग ऐसे ऐसे कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो वन मोर क्वेश्चन विच इज सेम. ऐसे सूचर कौन से मिलते हैं विच इज रिजेंबल एज द डेंड्रेटिक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर? ओके, डेंड्रेटिक पैटर्न जैसा ऐसा कौन सा सूचर है विच इज सूचर आर रिलेटेड टू दी सूचर लाइन इज रिलेटेड टू दी सेफलोपॉड, राइट? सेफलोपॉड में हमने 5 हमने सूचर लाइन देखे थे, राइट? कैन यू रिमेम्बर गाइस which suture? This is the aperture line showing the direction. Amniotic suture, ma'am. Yes, exactly, very good. This will be amniotic suture which is more complex. सबसे ज्यादा complex हमारा होता है amniotic suture. And this will be what? And name this one. First one, ma'am, gonionetic, Yes. serratic, ma'am, second. This one is the serratic. Okay, right. Serratic having the frilled, you can say frilled or divided lobe. Okay, divided lobe and rounded saddle. Okay, these are the saddle which uplifted part. Okay, and lobe basically depression zone. So ye uplifted one is known as the saddle and depression zone is known as the lobe, right? And these are the rounded and pointed lobe, right? So
the question actually we have to correlate this dendritic pattern. अगर आपको ऐसा कोई रॉक में, सपोज ऐसा कोई रॉक में आपको ड्यू टू सॉल्यूशन एक्टिविटी ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है, तो यू मे कंफ्यूज कि अरे ये शायद किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है या कोई ट्रेस फॉसिल है, राइट? ट्रेस फॉसिल क्या होता है? जनरली द ये स्क्रॉलिंग ट्रेलिंग एक्शन जो प्रिजर्व हो जाते हैं किसी सॉफ्ट रॉक में. सो वी डोंट कंफ्यूज कि अरे ये जो हमारा ये irregular pattern दिख रहा है रॉक में, it will be a dendritic pattern. Obviously they look like a dendritic pattern sometimes. So you don't confuse trace fossil or pseudo fossils. Pseudo fossils वो fossils नहीं होते. Generally these are the chemicals. Okay, these are the chemicals due to chemical dissolutions activity. So यहाँ कोई chemical है, यहाँ कोई organism का रोल नहीं है, right? यहाँ किसी भी organism का रोल नहीं है. But in the trace fossil it is direct or indirect, you can say direct or indirect traces. Direct में भी ये direct कोई soft rock है, it will be very soft rock because soft rock क्यों, hard rock पे अगर कोई इस छोटा सा animal चलेगा तो उसके imprints नहीं छपेंगे, right? तो it should be some soft rock which is just you can say muddy, clay, sedimentary rock. Okay, सो यहाँ से ये स्क्रॉल करते हुए गए तो उनके पीछे उन्होंने एक निशान छोड़ा, राइट? जैसे आप कभी डेजर्ट में गए हो, आप चलते हो तो आपके पैर के फुटप्रिंट्स छप जाते हैं, राइट? बट वहां पे इतने वो चल रहे हैं, मींस इरोजनल एक्टिविटी चल रही है कि वो डेजर्ट वापस से डेजर्ट आएगा, डिफ्लेक्शन होगा तो वो चीज रिमूव हो जाएगी. बट हियर इन लास्ट पास्ट प्री हिस्टोरिक टाइम में जब वो कोई सॉफ्ट सेडिमेंट था, अगर यहाँ पे कोई सपोज डायनासोर तो बहुत हैवी है, उसके फुटप्रिंट्स छपे एंड ऑल ऑफ सडन फिर कुछ टाइम बाद इस पे सेडिमेंटेशन हो गया, राइट? तो इट विल बी प्रिजर्व. अब ये प्रिजर्व हो गए. ओके, तो प्रिजर्व होने के लिए भी उनका सेफ होना बहुत जरूरी है. उनका सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो जाए, वो किसी चीज से वापस से ड्यू टू इरोजन एक्टिविटी से बच जाए, तभी वो प्रिजर्व हो पाएंगे, राइट? सो ये ट्रेस फॉसिल में क्या क्या होते हैं? फुटप्रिंट होते हैं, बरो होते हैं. व्हाट इज बरो? बरो बेसिकली कोई एनिमल जो डिग करके अंदर रहता है, राइट? अब सपोज ये डिग करके अंदर यहाँ पे अपना घर बना के रहता है, राइट? अब ये मर गया तो दिस बरो इज देयर, राइट? वो तो प्रिजर्व हो गया, राइट? तो ऐसी चीजें जो भी है जो लाइफ का इनका हैबिटेशन बताती कि वो कैसे चलते थे, कैसे मूव करते थे, कैसे रहते थे, राइट? तो इन सारे इनडायरेक्ट एविडेंस को हम बोलते हैं ट्रेस फॉसिल. एंड द कंफ्यूजन बिटवीन ट्रेस एंड स्यूडो आई थिंक नाउ क्लियर. This is not related to any organism activity, but in the trace fossil this will be direct movement of the animal, you can say crawling, tracking, trailing, jumping. जिस तरीके का भी मूवमेंट हो वो अगर किसी सॉफ्ट सेडिमेंट में रह जाए तो उसी को हम ट्रेस फॉसिल बोलते हैं. क्लियर? एंड बॉडी फॉसिल इज व्हाट? बॉडी एज द नेम सजेस्ट, बॉडी, इसमें पूरा बॉडी जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, राइट? होल बॉडी प्रिजर्व्ड. अब ये होते कैसे? लेट्स सी. दे आर प्रिजर्व बाय रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय थ्री वे. फ्रीजिंग, फ्रीजिंग एक्चुअली द बेस्ट वन. कोई ऑर्गेनिज्म फ्रीज हो जाए तो बहुत अच्छा यू कैन से बहुत अच्छा वो प्रिजर्वेशन शो करता है. सपोज अगर साइबेरिया में हमें मिला है मैमथ, राइट? सो वहां पे क्या बहुत बड़ा मैमथ था, वो एज इट इज है प्रिजर्व है, तो उसके मसल भी बिल्कुल सॉफ्ट है. जैसे सपोज क्योंकि जैसे आप देखे होंगे कि मर्चरीज वगैरह में डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, राइट? आइस में प्रिजर्व करते हैं, तो वैसे ही तो वो भी प्रिजर्व हो गया, राइट? आइस में प्रॉपर वो मैमथ जो था हमारा सीनोजोइक टाइम का वो प्रिजर्व है बिल्कुल एज इट इज. तो वहां पे होल बॉडी प्रिजर्व हो गई ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस आइस दे आर गोइंग टू बी फ्रीज्ड. ओके, तो उनके बॉडी फंक्शन वो ऑब्वियसली डेड है, जिंदा नहीं है, बट इट विल बी फ्रीज्ड. ओके, एंड पेट्रिफिकेशन एंड पर मिनरलाइजेशन, दीज आर वेरी मच इंटरेस्टिंग, तो वी सी लेटर वन बाय वन. ओके, सो दिस इज सेम थिंग. ट्रेस फॉसिल ये किसी डायनासोर या किसी मैमल का है फुटप्रिंट, इट विल बी प्रिजर्व ऑन द अपर सरफेस ऑफ द रॉक. ओके, सो दिस विल बी हेल्प. इनसे हमें क्या पता चल सकता है कि उनका
लेग के साइज कैसे थे, हैबिटेट, वो चलते कैसे थे, उनका बाइपेडल लोकोमोशन था या क्वाड्रिपेडल लोकोमोशन था, इरेक्ट चलते थे। ओके, तो ये सारी चीजें पता चलेंगी। सो कार्बन फीलिंग, दिस विल बी इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन कार्बन फीलिंग से आ चुका है, तो यू हैव टू नो कार्बन फिल्म और कार्बन फॉसेस both are the same thing. Why we use carbon film word? Can you guess, guys? Because this is very thin. जो आपने कार्बन फिल्म देखा है, जो सीडी का कैसेट होता है समथिंग विच इज वेरी मच थिन, राइट, जो ब्लैक कलर का होता है कार्बन, दिस इज वेरी थिन। और ये थिन हुआ कैसे? सपोज एक स्ट्रेटा है, आई थिंक दिस विल, okay, if you have any doubt guys, you can ask, right? So this is suppose a strata, and यहाँ पे suppose this is leaf. लीफ के बहुत सारे हमको मिले, कार्बन फिल्म और कार्बन फॉसिल्स, राइट, लीफ के बहुत हैं, बट यू कैन सी हियर अ फिश इज देयर। सो ये लीफ है, और सपोज यहाँ पे कोई सेडिमेंटेशन हुआ एंड वन मोर थिक बेड just accumulate or just accumulated over this लीफ स्ट्रक्चर। ओके, तो अब ये कैसे हो गई? बिल्कुल इसके ऊपर हो गई, तो सपोज कोई बिल्कुल ये छप गया, वो बिल्कुल प्रिंट आ गया। वाई ये प्रिंट बिल्कुल एज इट इज आ गया? बिकॉज एज वी नो कि एवरी लिविंग बॉडी कंटेन कार्बन, हमारे अंदर भी कार्बन है, इसीलिए तो हम कार्बन डेटिंग करते हैं, राइट। C14 कार्बन डेटिंग करके पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई, उसका एज निकालते हैं कार्बन डेटिंग से, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग कार्बन, राइट। जब वो ऑर्गेनिज्म डेथ करता है तो उसके कार्बन जो है वो परसेंटेज डिक्रीज होने लगते हैं, तो उससे हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई, बिकॉज ऑफ जस्ट कार्बन डेटिंग, राइट। तो ये जो ऑर्गेनिज्म कार्बन कंटेनिंग है, जब इनके ऊपर जस्ट सेडिमेंट बरीड होना स्टार्ट हो गया, तो एक थिक बरीड हुआ ड्यू टू प्रेशर। नाउ व्हाट हैपन, दिस गैसियस विच इज कार्बन जनरली वांट टू एस्केप, पर वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से दे जस्ट एज इट इज एक प्रिंट, एक डायग्राम, यू कैन से, कितना ब्यूटीफुल डायग्राम लाइक स्ट्रक्चर दिखा देता है, जिसको हम कार्बन फिल्म और कार्बन फॉसिल्स बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉज ऑफ द जस्ट कार्बन विच इज वांट टू एस्केप, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू बर्डन प्रेशर, राइट। सो इट्स मेक, वो उनके जो पूरे बॉडी के कार्बन है वो पूरे स्ट्रक्चर्स में फॉर्म हो जाते हैं। और लीफ के भी हमको मिले हैं, लाइक हमने जो भी देखा है गोडवाना फ्लोरा, वो जनरली हमको कार्बन फिल्म में ही मिले हैं, राइट। सो दिस इज कार्बन फिल्म, क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज दी पेट्रीफाइड वुड। ओके, ये सारी चीजें पढ़ लिए, बट जो आज कुछ नए फॉसिल्स ऐड करने, जस्ट बिफोर आफ्टर दिस वी कैन ऐड पेट्रीफाइड वुड। जनरली क्या होता है, जस्ट सिंपल यू कैन सी दिस इज द पेट्रीफाइड, दिस इज द पर्टिकुलर वुड इन द पर्टिकुलर स्ट्रेटा, राइट, दिस इज द स्ट्रेटा एंड दिस इज वुड। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि जो वुड था, सपोज ये किसी ऐसे एरिया में था जहाँ वाटर रिच था, वहाँ मिनरल बहुत ज्यादा थे, राइट। सो व्हाट हैपेंड, द वाटर और मिनरल वाटर सोक, ये जो ऑब्वियसली ये जो हमारा वुड है, इसके अंदर तो बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है, पोर स्पेसेस है ना, राइट। सो इट कंटेन डिफरेंट पोर स्पेसेस, राइट। सो वाटर जो मिनरल रिच वाटर था, नाउ दे आर गोइंग टू sit into this pore spaces, right? So in pore spaces पे जो एक्स्ट्रा, यू कैन से, उनको हम एलियन लाइक क्या बोलते हैं, जीनोलिथ बोलते हैं ना समटाइम, विच इज नॉट रिलेटेड टू द सराउंडिंग, जीनोलिथ बोलते हैं, एलियन मटेरियल बोलते हैं, यू कैन से विच इज नॉट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ दिस वुड, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एरिया। ओके, जो बाहर के एरिया से नाउ दे आर गोइंग टू सोक, और इन स्मॉल स्मॉल एरिया में नाउ दे आर गोइंग टू फील्ड। फिर क्या होगा कि वो जितने भी मिनरल मैटर थे और वाटर थे, नाउ दे आर गोइंग टू सॉलिडिफाई। अब वो पूरा ये एक सॉलिडिफाई और पेट्रिफाइड वुड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, जस्ट रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ के जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल थे, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मटेरियल तो डिके काइंड ऑफ एक्टिविटी तो होगी, राइट। तो वो सारे यहाँ से जस्ट रिमूव हो गए, एंड नाउ न्यू मटेरियल इज गोइंग टू सेटल डाउन। So at last we get petrified wood. Okay, so this will be the petrified wood. Here you can see definitions. The fossils are often
form when organism remain become petrified and turn into stone. just stone हो गया because the organic matter just remove हो गया by inorganic. okay, सारे inorganic matter आ गए अंदर and organic material remove हो गए. okay, so now they are resemble like stone, बहुत hard हो गया. and this process here the mineral rich water soak into small cavity, same thing, and pour original organism. so जो organs थे, जो material थे, now they are going to replace totally and mineral precipitated from the water or fill spaces, same thing, right? so it will be form a petrified wood. so this will be, you can see this is petrified wood which is formed in this sediments, which is quite finer one. I think shale is there. okay, so let's next again pseudo fossil. now it's clear. so definition wise you can see, consider as the neither plant nor animal, क्योंकि ये है ही नहीं fossil का form, right? so these are just watery solution of various mineral that take place and shape of the plant parts or animal, right? ड्यू टू जस्ट केमिकली रिएक्शन, और केमिकल कोई रिएक्शन हो जाता है. हमने स्टाइलोलाइट पढ़ा था गाइस, यू रिमेम्बर स्टाइलोलाइट which is formed in the limestone bed, right? जो ऐसे ऐसे कुछ स्टाइलोलाइट ड्यू टू डिसोल्यूशन एक्टिविटी, क्योंकि लाइमस्टोन इज हाईली डिसॉल्व मटेरियल, राइट? वो बहुत ज्यादा डिसोल्यूशन शो करते हैं. तो सपोज दिस इज द मोर लेस डिसोल्यूशन एंड हियर मोर डिसोल्यूशन मटेरियल इज देयर. तो ये ऐसे डिसॉल्व होते हैं एंड नाउ दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस सॉ टूथ. सॉ टूथ जैसे आपने देखा आरी के ऐसे होते हैं, एग्जैक्टली उन्हीं को हम सॉ टूथ बोलते हैं. ओके, सॉ मीन्स आरी, टूथ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो दे आर रिजेंबल लाइक सॉ टूथ और जिगजैग. सो दिस इज नोन एज ए सुडो. तो आपको देख के लग सकता है कि ओ इट विल, ये शायद ये किसी ये कार्बन फिल्म है किसी पौधे का, राइट? सो दिस इज नॉट, just this is the due to chemical reaction or due to dissolution activity, right? ऐसे सेडिमेंट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ड्यू टू डिसोल्यूशंस और कॉम्पैक्शन. ओके, सो दिस इज मोल्ड, वेरी मच इजी. मोल्ड क्या होता है? you can see this is the hollow area, right? hollow. so basically suppose एक एमोनॉइड है, right? एमोनॉइड. अब क्या हुआ? now this एमोनॉइड ये किसी सेडिमेंट्री बेड में है एंड ये जो इसके ऑर्गेनिक मैटर है, नाउ दिस विल बी गोइंग टू डिसॉल्व. ये डिसॉल्व हो गए और सपोज कहीं से वाटर आया, कोई फ्रेश वाटर और कोई सोर्स ऑफ वाटर आया और ये पूरा डिसॉल्व मटेरियल को इसने बहा कर ले गया, राइट? सो अब जस्ट जिस रॉक में था जहां पे ये ले डाउन किया था, सपोज जस्ट इसका आप वो देखो साइड व्यू, एक ये बेड है और इस पे ऐसे है, राइट? तो ये इतना एरिया तो लिया है, राइट? इसका सेडिमेंट का इतना एरिया है, तो इट्स हैविंग काइंड ऑफ डिप्रेशन ना, इस सेडिमेंट में इनबिट है, तो इतना डिप्रेशन जोन जो क्रिएट किया, अब ये जो रिमूव हो गया तो इट विल बी सेकंड में आपको ऐसे दिखेगा, राइट? सो दिस विल बी क्रिएट अ हॉलो एरिया, राइट? हॉलो एरिया. सो इसी को मोल्ड बोलते हैं. जस्ट ये चीजें रिमूव हो जाएंगी एंड जस्ट सी, यहाँ से वाटर आया, ये पूरी चीजें रिमूव हो गई एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द डिप्रेशन हॉलो. तो ये हमें क्या शो करता है? दिस इज शोइंग जस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इंटरनल नहीं पता चलेगा क्योंकि इंटरनल बॉडी ही नहीं बची, राइट? नो इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमें तो बॉडी का होना चाहिए, होना जरूरी है, राइट? इंटरनल स्ट्रक्चर, नो इंटरनल स्ट्रक्चर, इट्स शोइंग जस्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. वी कैन प्रिडिक्ट कि इनके एक्सटर्नल में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम इस मोल्ड को देखकर बता सकते हैं, बट वी कांट प्रिडिक्ट एनी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, राइट? सो मोल्ड इज जस्ट, you can read definitions also. Fossils, a mold is created when the cell of other structure buried in the sediment and dissolved by groundwater. okay, dissolve हो गया ग्राउंड वाटर से and this mold reflect only shape और surface marking of organism. just surface का जो मार्क है आउटर एरिया का,
हम उसको बता सकते हैं, उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये कौन से एनिमल है। अगर एमोनोइड्स रहा, सेफलोपोड्स रहा, ट्राइलोबाइटा रहा, तो उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जस्ट शेप को देख के बता सकते हैं, ओके, कि इट विल बी दिस पर्टिकुलर organism, right? So it is doesn't reveal any information about the internal structure. Simple, okay? And sorry, caste just इसका opposite होता है, right? Caste is just opposite to mold. So let's see what is caste. So you can see caste is just created if hollow space of mold is later filled with the mineral matter. Okay, what definition says? अब ये suppose ये जो space create हो गया, right? अब यहाँ पे कोई मिनरल मैटर आया, यहाँ पे सपोज अगेन, क्योंकि यहाँ वो ग्राउंड वाटर का सोर्स है, तो कहीं ना कहीं मिनरल का सोर्स होगा, राइट? सपोज ये कुछ मिनरल मैटर है, वो भी फ्लो करके आए, यहाँ से आए, और अब ये डिप्रेशन जोन है। तो अब इसमें जो मिनरल मैटर है वो बहुत इजीली ऑक्यूपाई कर जाएगा, राइट? अब इसमें सारे ऑक्यूपाई कर जाएंगे, एंड नाउ अब हमें जो मिलेगा एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा। जो ये स्पेस था, होलो स्पेस, नाउ इट विल बी फिल्ड विद द मिनरल मैटर, राइट? तो अब ये एक्सटर्नल बॉडी शो करने लगा, विच इज कॉल्ड एज दी कास्ट, राइट? जस्ट वो होलो स्पेस को वो फिल्ड कर दिया कोई भी मिनरल मैटर, उसी को हम बोलते हैं कास्ट। वेरी इजी, ओके? So this will be cast. Next, okay. Now we have to see other kind of the fossils, right? So these are the already we know, but let's see something which we don't know, right? So this is the first one, is the chemical fossil. अब इसमें क्या होता है? सपोज व्हेन वेल प्रिजर्व पैलियो प्रोटीन, पैलियो वर्ड कहाँ हम यूज करते हैं गाइस? पैलियो में जस्ट पास, लाइक पैलियोंटोलॉजी, पैलियो जियोग्राफी, ओके, पैलियो इकोलॉजी, पैलियो इन्वायरमेंट, मतलब जितने भी पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम पैलियो वर्ड लगा देते हैं। और नियो वर्ड इज जस्ट रिलेटेड टू द न्यू लाइफ, राइट? न्यूओलॉजी, न्यू थिंग के लिए जब पढ़ते हो तो उनको जस्ट न्यू लगाते हैं, पैलियो के लिए पास्ट, ओके? सो वेल प्रिजर्व पैलियो प्रोटीन एमिनो एसिड, ये जब प्रिजर्व हो जाते हैं किसी भी सरफेस पे और कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो उन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल फॉसिल्स, राइट? सपोज एक ये बेड है, अगेन सेम थिंग, जैसे वो कार्बन फिल्म था वही, कब बस यहाँ पे कार्बन फिल्म की जगह कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म है तो इट्स कंटेन एमिनो एसिड, प्रोटीन, ओके? प्रोटीन का ही फॉर्म होता है एमिनो एसिड। तो ये कंसिस्ट किया हुआ है, जब इस पे प्रेशर पड़ा, ओवर बर्डन प्रेशर पड़ा और ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ओके? तो ये एक क्रिएट किया, जैसा आप कार्बन फिल्म में देखे थे, एग्जैक्टली ऐसा एक फॉर्म क्रिएट करेगा, ओके? जब अगर ये अपर सरफेस जो भी था इरोजन हुआ तो आपको ये जो फॉसिल जो दबा हुआ था वो आपको दिखेगा एज अ केमिकल फॉसिल्स, ओके? सो जस्ट लेट्स डाउन राइट डाउन दिस डेफिनेशंस। वेल प्रिजर्व paleoproteins and amino acid, okay? Structures resulting from recrystallization carbonizations. Guys, you know what is carbonization? Chemical fossil. कार्बोनाइजेशन गाइस किसी को पता है? ओके, सो कार्बोनाइजेशन जनरली क्या होता है? सपोज ये भी अगेन प्रोसेस में कॉल फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली
सो व्हाट हैपन इन कार्बोनाइजेशन, हाँ उसका प्रोडक्ट इज कोल, पीट, लिग्नाइट, वॉट एवर जो कोल के फॉर्म होते हैं वो होते हैं। बट इसमें होता है क्या है, सपोज कोल किससे बना है गाइस? वुड से मैम। यस, इट इज प्लांट पार्ट, ओके। प्लांट के जितने भी मटेरियल, लाइक इट विल बी वुड, स्टेम, लीफ, फ्लावर, जो प्लांट मटेरियल है उससे हमारा बनता है कोल। एंड पेट्रोलियम जनरली बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, जो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन थे, मेनली जू प्लैंक्टन जो ऑर्गेनिज्म थे, उनसे जो भी ऑयल निकलता है विच इज पेट्रोलियम, ओके। सो ये जो वुड है, जो भी है प्लांट का पार्ट, राइट। अब ये क्या हुआ कि ड्यू टू ओवरबर्डन, नाउ इट्स बिकम अ काइंड ऑफ मोर कॉम्पैक्ट, राइट। सपोज अब ये इनमें क्या हुआ, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये जो मैचुरेशन शो करेगा ड्यू टू प्रेशर, टेम्परेचर, वो कोल का पूरा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर। तो generally we are talking about here carbonizations, okay। So what happened in this process, every material, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल थे, नाउ रिमूव्ड, वो सारे निकल गए, राइट, ओनली कार्बन इज लेफ्ट, सिर्फ कार्बन ही बचा, ओके। तो इसी को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ओनली कार्बन इज लेफ्ट। तो आप जानते हो कोल का अगर कोई कंपोजिशन पूछेगा तो इट्स कार्बन, ओके। जनरली 100% कार्बन हम किसको बोलते हैं गाइस? ग्रेफाइट और डायमंड, विच इज जस्ट कार्बन, ओके। सो आप सोच सकते हो कोल ही है जो एट लास्ट, कोल का अगर हम सीरीज देखें, कोल क्या क्या होता है गाइस, यू नो, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंड देन लास्ट स्टेज इज एंथ्रासाइट। बट एंथ्रासाइट के बाद हमारा बनता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट पे भी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर दे दिया जाए तो इट विल बिकम डायमंड, राइट। सो ये भी है सी, ओके। सो दीज आर जनरली कार्बन, ऑल आर दी कार्बन, बट पीट इज नॉट ट्रू कार्बन बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इम्प्यूरिटीज रहते हैं। आप लोग में अभी कोल, पेट्रोलियम नहीं है गाइस, राइट। सो है जस्ट मैम सिलेबस में जो इकोनॉमी जियोलॉजी में। ओके, ओके। सो ये इम्प्योर कार्बन है, बट स्लोली जैसे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेंगे, जितने भी लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ओके, सो जितने ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सल्फर भी होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, तो ये सारे रिमूव होते हैं, और मॉइस्चर कंटेनिंग भी रहेगा, ओके। मॉइस्चर ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्लांट ऑर्गेनिज्म है तो इट शुड हैव सम वाटर, राइट, तो मॉइस्चर कंटेंट भी रहेगा, वो सारे सब कुछ रिमूव हो जाएंगे, ओनली कार्बन इज लेफ्ट, बिकॉज दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, जितना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा जस्ट कार्बन बचेगा। तो ये बिल्कुल जो हमारा डायमंड होता है, क्रिस्टल, which is last stage, okay। एंड ग्रेफाइट, तो आप जानते हो पेन की लीड, जो पेंसिल की लीड होती है, विच इज ग्रेफाइट, ओके, ब्लैक, ब्लैक जो हम ग्रेफाइट पेंसिल में यूज करते हैं, विच इज ग्रेफाइट, ओके। सो दिस इज केमिकल फॉसिल्स डन। सो लेट्स मूव डिराइव्ड और रीवर्क फॉसिल, ओके। सो व्हाट इज डिराइव and rework, okay, fossil। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इजी। सपोज ये कोई एक स्ट्रेटा बेड है, राइट, कोई बेड है और कोई स्ट्रेटा है, यहाँ पे कोई फॉसिल आपको मिल रहा है। सपोज दिस दिस इज ट्राइलोबाइट, ओके। ट्राइलोबाइट का एज क्या है गाइस, यू नो, ट्राइलोबाइट का एज पैलियोजोइक, राइट, पैलियोजोइक, और एक्सटिंक्ट हुआ था हमारा पर्मियन में, राइट। सो ये ट्राइलोबाइटा है, और ये इस बेड में मिल रहा है, ये जो बेड है वो हमारा, सपोज ये हमारा मीसोजोइक का है, ओके। सो ये बहुत यंगर है, एंड बट जो फॉसिल्स मिल रहा है इट विल बी ओल्डर,
तो आप कह सकते हो कि अरे ये जो फॉसिल्स है ये इतना ओल्डर है और ये बेड तो बहुत यंगर है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये हुआ कैसे कि जब ये बेड बन रहा था उसके बाद ड्यू टू सम एक्टिविटी, इरोजन, ये जो फॉसिल था ट्राइलोबाइटा वो कहीं और से आया और यहाँ सेटल हो गया। ओके, सो हमें ये जब कोई सीक्वेंस हमें मिल रहा है तो ये जो बेड मिल रहा है वो बहुत न्यूअर है, न्यू एज का है, बस इसमें जो हमें फॉसिल मिल रहा है वो बहुत ओल्डर मिल रहा है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हमें बताता है कि डिराइव फॉसिल, डिराइव वर्ड जनरली यूज्ड टू समथिंग विच इज ट्रेवल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, ये जैसे ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थ्योरी है। ओके, सो इसमें होता है क्या है जनरली कि जो फॉसिल्स था वो कहीं दूर से ट्रेवल करके आया और वो यहाँ के सेटल हो गया, राइट? तो ये हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं ड्यू टू जस्ट एज, कि ये जो बेड का एज है वो कुछ और है और ये फॉसिल का एज कुछ और है, तो इससे मिसमैच हो गया, राइट? कि ये कैसे पॉसिबल है कि फॉसिल्स तो बहुत ओल्डर है और बेड बहुत न्यूअर है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो फॉसिल्स है वो कहीं दूर से ट्रेवल करके आया है। ओके, सो दिस विल बी नोन एज द डिराइव और रिवर्क फॉसिल। सो दीज आर दी ओरिजिनली बिलोंग टू सम ओल्डर होराइजन और इट विल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दी वॉर्न, और जनरली ये ट्रेवल करके आ रहा है तो ये ऑब्वियसली ये वॉर्न और टीयर आउट होगा ना, कुछ कुछ इसके पार्ट्स टूटे रहेंगे, आपको ये मिलेगा, वेल प्रिजर्व नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेवल करके आया है, राइट? अभी सपोज जस्ट रॉक भी कोई दूर से ट्रेवल करता है तो ये जो इरेगुलरिटी होती है, नाउ दे आर बिकम टू रेगुलर, राइट? ड्यू टू ट्रेवल, ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिस्टेंस ऑफ कवरिंग बाय दिस पर्टिकुलर स्टोन, तो वो बहुत ज्यादा स्फेरिकल हो जाता है, राइट? जिसको हम वेल सॉर्टेड बोलते हैं। सो ये भी तो टकरा टकरा के ये जो अपने शेप होते हैं लूज कर देते हैं, जो इरेगुलर शेप था, स्फेरिटी थी, नाउ दे आर गोइंग टू स्फेरिकल, टोटली स्फेरिकल। ओके, सो ऐसे ही फॉसिल के भी केस में जब वो ट्रेवल करके आ रहा है तो दे मे बी वॉन्ट टीयर आउट समथिंग। ओके, so this is known as the derive or rework fossils. So definition is actually long, but let's write. These are originally belong to some older. Okay, belong to, this was just example, don't confuse older or younger, just example कि इसमें mismatch हो जाएगा fossil का age और bed का age, right? You have to understand कि जो एज है एज वाइज हम पकड़ते हैं कि ये डिराइव और रीवर्क फॉसिल है बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन एज। Okay, belong to some older it can be worn and rounded surface, obviously क्योंकि ये ट्रेवल करके आ रहा है तो रास्ते में टीयर आउट हो जाएंगे सारी चीजें, राइट? Perhaps different means of preservation. Okay, means of preservation or content of matrix from इंडिजिनस, इंडिजिनस जनरली जो सराउंडिंग में, ओके, जो बाहर से आ रहे हैं, इंडिजिनस जो बाहर से भी जिसको मैंने बोला था ना भी एलियन सब्सटेंस और जीनोलिथ जो बाहर से दूर से आते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू, ये सारे जो टर्मोलॉजी जियोलॉजी में यूज होते हैं। ओके, सो इंडिजिनस विच इज रिलेटेड टू डिफरेंट प्लेस। ओके, इंडिजिनस फॉसिल्स with them mixed। ओके, ये सपोज कोई सेडिमेंट्री बेड था, वो कोई फॉसिल दूर से आया, यहाँ पे सेटल डाउन हो गया, फिर हम एज में जो एज की वजह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और दूसरा डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, बाय थ्रू द एज एंड थ्रू बाय लुकिंग दिस पर्टिकुलर फॉसिल, फॉसिल का जो एज था, लाइक ट्राइलोवेटा का जो हमारा ये होता है
cephalon, thorax, pygidium, and now this is are having some different kind of spines, right? यहाँ पे बहुत सारे spines होते हैं. अब due to prolonged distance traveling, they are become circular, okay? Somehow जो spines ऐसे थे, now they are curved. बहुत सारे मैंने दिखाए थे ना, calamine which is curvy body, right? जो उनका जो ये thorax था वो curve था, but paradoxide this is cephalon which is having lots of spines, okay? पैराडॉक्साइड का ये एक फीचर है बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लॉन्ग और यू कैन से वेरी शार्प kind of the spines is there, okay? So I have an image also, I can show you. You can see this is the paradoxide, okay? And you can say these are the not having that much spines, right? इतने स्ट्रॉन्ग स्पाइंस नहीं है. जो कैलामीन होता है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं, राइट? कर्व. एंड यू कैन से दीस आर दी स्पाइंस. अब इनको प्रिजर्व होना बहुत, अगर वो एज इट इज प्रिजर्व है, कोई प्रोलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए, यू कैन से दीज आर दी ब्रोकन, ओके? Not every fossil preserve very well, okay? You can see these are the broken, here also broken, these are the broken part, okay? These are the cracked. सो अगर आपको ऐसा दिखेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रेवल करके आया, बट दिस विल बी नॉट शोइंग दैट वन ट्रेवलिंग बिकॉज दीज आर स्पाइंस आर स्टिल प्रिजर्व, ओके? जब ये ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली दीज स्पाइंस आर रिड्यूस्ड, दे मे फॉर्म, जो ऐसे हैं वो समहाउ ऐसे हो जाएंगे, राइट? सो दीज आर फॉसिल्स. आप फॉसिल को देख के बता सकते हो कि हाँ इसने कितना ट्रेवल किया, राइट? सो these are the derived, and now next one is the living fossils. Living fossils हम जानते हैं already. कोई बता सकता है guys living fossil? Just one word is there, okay? Living fossil we can define in only one word. Like primitive character is doesn't change, okay? Without changing primitive characters, okay? So this will be known as the living fossils. Like example, ginkgo, okay? Ginkgo is basically cycas plant, okay? Cycas, sorry. So ये बिल्कुल और लिंगुला भी है हमारा. Another one is the lingula, and one more is the notiolide, okay? Notiolide of the notiolide. ये notiolide और lingula from brachiopod, and notiolide from the cephalopod, okay? So these are not changing any kind of morphological changes, okay? जैसा वो पास में दिखते थे वो still उनके जो फीचर्स है. सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं, ये जो ट्राइलोबाइटा का cephalon है, thorax, and this will be pygidium, okay? तो प्रिमिटिव इज दिस वन, ओके? बट ट्राइलोबाइटा बहुत ज्यादा चेंज हुआ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी चेंज करता है. आई वाज जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. इनको सपोज ये जो स्पाइंस है, स्पाइंस और दिस सेगमेंट आर सपोज these are having 42 segments, right? And this one is the primitive character, okay? तो अभी भी आकर जो न्यू टाइम में हमें जो अभी भी फॉसिल मिल रहे हैं, these are the living one, मतलब ये प्रेजेंट में भी मिल रहे हैं, ओके? अगर इनका एज देखेंगे तो रिसेंट होगा, सारा रिसेंट होगा, आखिरी में रिसेंट, ओके? बिकॉज दीज आर द लिविंग वन, वो स्टिल प्रेजेंट है, राइट? और जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है दीज आर दी कंटिन्यूअस, वो चेंज नहीं हुए, ओके? थोड़ा बहुत मे बी ड्यू टू हैबिटेशन चेंज हो जाए, बट पर्टिकुलर अब जैसे ये 42 सेगमेंट है तो स्टिल दे आर 42 और 41 सेगमेंट अगेन, ओके? सो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ट्राइलोबाइटा का एग्जाम्पल मैंने दे दिया बिकॉज, बट ट्राइलोबाइटा इज नॉट लिविंग फॉसिल क्योंकि वो तो एक्सटिंक्ट हो गए, ओके? These are the extinct, it is extinct in KT boundary which Permian, right? So not KT, PT boundary, किसी ने correct नहीं किया guys. Trilobita is extinct during Permian Triassic boundary, right? So these are the lingula
from brachiopods and nautiloid from cephalopod, and this one is the Gondwana fossils. Okay, Gondwana fossils. दिस वन इज द प्लांट, बेसिकली प्लांट. साइकस क्या होता है? साइकस किसी ने देखा? साइकस और साइकड, पाइनस, पाइनस ट्री, these all are the gymnosperm. Okay, so these are the plant fossil. So these three you have to remember. अगर living fossil का example आ जाए option में, तो you can choose which one is the living. Ginkgo and Lingula nautiloidea. Okay, so Ramini fossil. Okay, very easy. This one is also very easy. Ramini fossil name से ही आपको क्या लग रहा है? Ramini you can understand remains. Okay, remains. और remains किसका बात कर रहे हैं हम? fossils का. तो you can say remains of the fossils. तो इसमें क्या होता है? ड्यू टू इरोजन, ये कोई ट्रेवल करके आया ड्यू टू ड्यूरिंग डिपोजिशंस, इनके कुछ पार्ट्स जो जैसे अभी हमने पैराडॉक्साइड का एग्जांपल देखा, दे आर क्रैक्ड एंड द पार्ट इज मिसिंग. ओके, तो ऐसी जो भी हमें बचे कुचे जो फॉसिल्स प्रिजर्वेशन मिलेंगे उन्हीं को बोलते हैं रेमिन फॉसिल्स. ओके, और रिमेन फॉसिल्स. सो ऑर्गेनिक मटेरियल विच हैव बीन रोल्ड or eroded, accumulated over consider period. Okay, so you can write down the organic material. ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं. ओके, विच हैव बीन रोल्ड. रोल्ड क्यों हुआ गाइस? क्योंकि जब वो ट्रेवल कर रहा है या ड्यू टू एट द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन तो रोल्ड हो रहा है या कुछ इरोजन हो रहा है. ओके, इरोडेड और एब्रेडेड, accumulating, over a considerable period. Okay, बिफोर डिपोजिशन, डिपोजिशन से पहले ही इतने सारे उनमें चेंजेस हो गए. राइट, तो उन्हीं को बोलते हैं रेमिनी फॉसिल्स. पहले ही वो ऑलमोस्ट रोल्ड हो गए, कुछ एब्रेड हो गए, कुछ इरोड हो गए, उनके कुछ पार्ट मिसिंग हो गए, जो बहुत ज्यादा एजेस थे वो नाउ they are become circular because of erosion. Okay, so they are showing different, these are the structure features you can just identify कि डिपोजिशन से पहले इनकी हालत ऐसी हो चुकी थी. ओके, सो दीज आर दी रिमेन फॉसिल्स. एंड नेक्स्ट वन इज द आइसोलेटेड. ओके, आइसोलेटेड आपको नाम से भी समझ में आ जाएगा. आइसोलेटेड फॉसिल, आइसोलेटेड विच इज लीव अलोन. ओके, तो ये एक बहुत अलग जगह पे पाए जाएंगे, विच इज फाउंड अलोन. अलोन अवे फ्रॉम हैबिटेशन, जो उनका ओरिजिनल पोजीशन था ना वहां से वो हो अवे मिल रहे हैं उनके. तो ये भी कैसे होगा? रिवर्क ड्यू टू ड्रिफ्टिंग मूवमेंट. ओके, ये वहां से ट्रेवल करके कहीं और जाके डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से हम इनको बोल सकते हैं. ओके, हैबिटेट. सो अगेन सी आइसोलेटेड, सपोज ये यहाँ रहता था, ये कोई एक बेसिन एरिया है, यहाँ पे बेसिन में हमें जनरली सपोज यहाँ पे फिश मिलते थे. राइट, फिश की डेथ हुई और ये यहाँ पे प्रिजर्व होने वाली है, डेथ हो गई, यहाँ पे प्रिजर्व फॉसिल्स है. बट यहाँ पे और सपोज यहाँ बेसिन एरिया, तो यहाँ से और सेडिमेंटेशन आए और ये नाउ दे आर गोइंग टू ट्रेवल अलोंग. फिर ये जो इनका हैबिटेशन था, अब ये जो फिश है तो ये मरीन हैबिटेशन शो करेगा. राइट, फिश है तो ऑब्वियसली मरीन शो करेगा, मरीन. बट नाउ दे आर गोइंग टू फाउंड एट द टेरेस्ट्रियल, ये यहाँ पे मिल रहा है. तो इसका जो ओरिजिनल जगह था, जो ओरिजिनल हैबिटेट था, जो यहाँ पे रहता था, ऑब्वियसली फिश है तो किसी पॉन्ड, लेक, मरीन इन्वायरमेंट में है. बट जो हमें मिल रहा है किसी टेरेस्ट्रियल पे मिल रहा है. ओके, टेरेस्ट्रियल यू कैन से लैंड एरिया. ओके, तो यहाँ पे फिश मिल रहा है तो यू कैन से यहाँ बिल्कुल आइसोलेटेड है, जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट है वो नहीं है. तो इससे हम कह सकते हैं कि दीज आर दी आइसोलेटेड फॉसिल एंड नाउ दे आर गोइंग टू ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड नाउ दे आर प्रिजर्व हियर. ओके, so these are the isolated fossils. And index fossil, you guys know index fossils में क्या होता है?
ओके। इंडेक्स फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर हैविंग शॉर्ट रेंज एंड शोइंग वेरी वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बड़े जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फैले होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग वेरी मच अबंडेंस। ओके, सो उनको हम इंडेक्स फोर्सेस बोलते हैं। इंडेक्स फोर्सेस तो बहुत इजी है और ये हम ऑलरेडी कर किए हैं टाइम पे। ओके, सो वन मोर टर्मिनोलॉजी इज देयर, कोक्यूना बेड। ओके, कोक्यूना, where I have it. Coquina bed. Guys, you know what is coquina bed? This is highly fossiliferous limestone. Okay, fossiliferous limestone bed. इसमें बहुत सारे आपको लाइक ये एग्जाम्पल, ये कोई लाइमस्टोन है, इसमें बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म के सेल मिल जाएंगे। ओके, सो इसी को बोला गया कोकिना बेड। बहुत सारे फोर्सेस, अनलिमिटेड फोर्सेस हमने ऑलरेडी देखा है ड्यूरिंग आवर एमएससी प्रैक्टिकल। ओके, बीएससी प्रैक्टिकल में भी देखा है कोकिना बेड, लाइम फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन। ओके, सो इनको हम बोलते हैं कोकिना बेड। So it's done. Now it's time to solve few questions. Okay. Cast is done. This one. Choose the correct pair. Proterozoic origin of flower plants, flowering plants. Paleozoic origin of amphibian. Mesozoic acme of the trilobite. Acme क्या था guys? Abundance. Okay. Particular species का बहुत ज्यादा abundance कोई हम बोलते हैं acme. Okay. And Cenozoic, dominance of the mammal. So you have to choose which one is the correct. And this is the MSQ, multiple choice question. B and D, ma'am. B and D. You are saying B, D. Yes, ma'am. Yes, you are right. Okay. So Paleozoic, generally you can say the origin of amphibian, or if question may be like this, age of amphibian. So answer will be, guys, answer will be Carboniferous. Okay. Okay, and D is the Cenozoic, dominance of the mammal. और अगर age पूछता है what is the age of the bird and mammal. Okay, bird and mammal, so it will be also Cenozoic, right? And यहाँ पे क्या wrong है? The origin of flowering plant, let's write this one also. Origin of flowering plant, it will be Cretaceous, right? Cretaceous. And age of reptile is Mesozoic. Age of mammal is Cenozoic. Okay. मैम, बार्ड का And जो एज ऑफ बार्ड सेनोजोइक होगा। हाँ, you can say Cenozoic बर्ड का। समटाइम ऐसे जैसे थोड़ा सा चेंज रहता है, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते सीनोजोइक। जैसे हम डिओनियन भी अगर आप पूछा जाए कि एज ऑफ द एम्फीबियन, तो समवेयर यू कैन सी इट विल बी डिओनियन, राइट? डिओनियन, कार्बोनिफेरस, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा वेरी करता है।
तो आप ये ना ऑप्शन के थ्रू भी आप देख सकते हो कि विच वन इज इन द ऑप्शंस, लाइक एज ऑफ रेप्टाइल मीसोजोइक, एज ऑफ मैमल इज सीनोजोइक, और एज ऑफ एम्फीबियन इज द कार्बोनिफेरस। ओके, एज ऑफ द एम्फीबियन इज कार्बोनिफेरस। अगर फिश का आएगा तो यू हैव टू कंफ्यूज, शायद फिश जनरली कुछ लोग सिलूरियन बोलते हैं, कुछ लोग डिओनियन भी बोलते हैं, राइट? सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम। Guys, you know what is Archaeopteryx? Archaeopteryx. यस मैम, जो बाढ़ है एक। Yes, yes. So this is the fossil link between bird and, not totally bird, this is mammal. Okay, bird and reptile. Sorry, reptile. इनमें बीक भी थे और पूंछ भी थे। ओके, ये तो बर्ड के फीचर्स, राइट? रेप्टाइल के स्केली टेल होते हैं, वो टेल्स भी थे। एंड बर्ड का हमारा जनरली ओरिजिनल कैरेक्टर्स क्या होता है? दे आर हैविंग पर्टिकुलर विंग्स और बीक, राइट? सो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन दीज। ओके, जो दोनों ही शो करते हैं, लाइक बर्ड और रेप्टाइल फीचर दोनों ही शो करते हैं। ओके, and the first record of invertebrate fauna. This will be also asked question. Okay, first record of invertebrate fauna is Ediacara. Okay, Ediacara fauna. This is the oldest animal fossils, which is around 640 million year ago. Okay, in Precambrian rock. It will be found in the Precambrian rock. Okay, basically ये मिला कहाँ था जिसकी वजह से हम इनका नाम दे दिए एडियाकारा। एडियाकारा basically this is found in the Ediacara hill. Okay, Ediacara hill of the South Australia. मैम एडियाकारा एक एनिमल फॉसिल है, प्लांट फॉसिल है मैम? This is animal fossils. एडियाकारा और कोकिना में भी यू कैन से कि वो फॉसिल एवरीथिंग, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू कैन से लाइक ऑस्ट्रोकॉर्ड, और उसमें सेल्स भी मिल रहे हैं, ब्रेकियोपोड, एवरीथिंग मरीन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि लाइमस्टोन क्या शो करता है गाइस? लाइमस्टोन शोइंग मरीन मरीन इन्वायरमेंट, राइट? तो मरीन इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, इफ दे आर गोइंग टू बी डेड एंड सेटल डाउन, तो फिर वो जो रॉक लिथिफाइड हो गया, तो उसमें बहुत सारे मरीन के स्कल्स थे। ओके, सेल्स थे, बेसिकली दे आर कार्बोनेशियस सेल्स, जितने भी कार्बोनेट सेल थे दे आर प्रिजर्व, तो उनको बोलेंगे कोकिना बेड, और यू कैन से फॉस्फोरस लाइमस्टोन। ओके, एंड दीज आर द एडियाकारा बेड। वहां जितने एनिमल फॉसिल थे विच इज फाउंड इन द प्रीकैम्ब्रियम रॉक, और ये नाम ही पड़ा एडियाकारा हिल पे। ओके, जैसे हमने देखा था नियंदरथैलेनेसिस। ओके, नियंदर इज एक्चुअली वैली, वो वैली है अफ्रीका का, इसलिए उनको नियंदरथैलेनेसिस और नियंदरथल मैन ये नाम की जगह से मिला है। ओके, जैसे शिवालिक शिवापिथिकस, दिस इज ओरिजिनेटेड और विच इज फाउंड इन द शिवालिक हिल, तो उनको हम शिवापिथिकस बोल दिए। ओके, तो कई बार क्या लोकेशन के वजह से हम उसको पर्टिकुलर चीजों के नाम देते हैं, राइट? Or age of fish, guys, you know what is the age of fish? डेवोनियन मैम। Yes, right. It will be Devonian. Okay, so next question is, which one of the following organism belongs to terrestrial or freshwater environment? Okay, freshwater environment plus they are showing both fresh as well as terrestrial. So which one is the options correct? गैस्ट्रोपोड मैम। Yes, D. Pulmonate
गैस्ट्रोपॉड. सो पल्मोनेट बेसिकली क्या, एक दिस इज द सब क्लासिफिकेशन. ओके, सब क्लासेस ऑफ द गैस्ट्रोपॉड. इसमें होता क्या है कि गिल्स इज removed what is terminology, reduce. Yes, gills is reduced by lungs. Okay, गिल्स. अब क्योंकि कुछ फॉसिल्स गैस्ट्रोपॉड्स, आप एग्जांपल दोगे, स्लग, स्नेल. ओके, सो दीज आर दी टेरेस्ट्रियल, जो आप टेरेस्ट्रियल पे देखे होगे ऐसे होते हैं, राइट. समथिंग उनके जो हार्ड पार्ट रहते हैं और नाउ दे आर गोइंग टू सॉफ्ट पार्ट. ओके, सो दीज आर दी स्नेल. तो ये इनके अंदर गिल्स के जगह हमें लंग्स मिलता है. तो ये दीज आर दी नोन एज द पल्मोनेट गैस्ट्रोपॉड्स बिकॉज दे आर हैविंग लंग्स. So that's why they are terrestrial animal, right? Terrestrial. So let's move next. इसके लिए बेटर वर्ड होगा रिप्लेस. रिप्लेस बाय लंग्स. ओके, जो गिल्स थे वो रिप्लेस हो गए लंग्स से, जिसकी वजह से नाउ दे आर एबल टू कम ऑन द लैंड. ओके, लैंड पे अब ये ट्रेवल कर सकते हैं. सो which one of the following is primate fossils? Okay, primate जनरली क्या होते हैं? ओके, होमोनॉइड्स. ओके, जो जितने भी ह्यूमन है हम उनको प्राइमेट्स बोलते हैं. सो एग्जाम्पल, हिपेरियन, इक्वस, स्टेलोगोफोन, रामापिथिकस. ओके, डी में है जो स्टेगोलोफोडन. नो नो गाइस, प्राइमेट जनरली हम ह्यूमंस को कंसीडर करते हैं, राइट. सो ह्यूमन फॉसिल्स अब क्या है, अब गाइस हिंट दे दिया. ह्यूमन फॉसिल, yes, it will be Ramapithecus. These are the equus, hipparion, these are the horse, right? This one is the horse and this one is the elephant. And this one is the Ramapithecus is the human, okay? Human. Ramapithecus and Sivapithecus. Both are the at the same age. वो साथ में मिले. Okay, Ramapithecus and Sivapithecus. Both are the Indian humans, okay? These are the Indian fossils. रामा से ही आपको समझ में आ जाएगा इंडियन, राइट. इंडियन फॉसिल. शिवापिथिकस शिव जी पे पड़ा नाम एंड रामापिथिकस राम जी पे. ओके, सो दीज आर द इंडियन फॉसिल विच इज फाउंड इन द शिवालिक हिल. शिवालिक हिल नाम भी लिख लो आप, शिवापिथिकस. ओके, शिवापिथिकस एंड रामापिथिकस. कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते विच वन इज द इंडियन humanoids. You have to choose और ऑप्शन दे दिया जाए. ओके, शिवापिथिकस, रामापिथिकस, you have to know. Okay, so let's move. Okay, yes, match the fossils taxa list group 1 and group 2. You have to choose these here the characteristic morphological feature and this will be the taxa, fossils taxa. Okay, you have to choose. बी मैम. डी. बहुत फास्ट गाइस, टाइम लो थोड़ा, फिर देखो ध्यान से. ओके, बी मैम, बी फॉर बॉल. ओके, ओके. हियर फाइसा क्या हमारा शो करता है जनरली? सिनिस्ट्रल. ओके, फाइसा और एक और है, क्या है गाइस, यू नो, प्लेनोर्बिस. ओके, प्लेनोर्बिस एंड फाइसा जनरली शोइंग सिनिस्ट्रल कॉइलिंग. एंड सिरेटाइट जनरली हमारा क्या होगा, 4s. ओके, पैराडॉक्साइट क्या है हमारा, जीनल एंगल. ओके, जीनल स्पाइन, जो इनके स्पाइन से, दैट्स व्हाई आई
choose this diagram. Okay, this one, this is the paradoxide. You can see this is the paradoxide or olenules. Okay, so you can see how beautiful these are, the spines, right? कितने large spines है. So ये इनके main characteristic है. Okay, genal spine, spine इनके बहुत large है, and इनके spines limited है, लेकिन you can see these are the leonules and these are having curve or very long extended. Okay, बहुत extended genal spines हैं. So these are the having beautiful spines. So अगर ऐसे कोई example आ गया तो you have to know कि paradoxide और oninules. Okay, these are the arthropods or trilobita which is having beautiful spines, which is long. Okay, long or sharp ridge like spines. So these are the two. And so next one is the Didymorphomograptus. Okay, Mograptus, which is two pendant strip. This is generally graptolites. Graptolites, ये graptolites का एक particular genus है which is extinct. Okay, so these are having two pendant type. So ऐसे कुछ ऐसे structure show करते हैं. Okay, resemble as the pendant. अगर आप ऐसे देखोगे तो pendant जैसे लगेंगे, and यहाँ पे spicules होते हैं, and these are the strip. Okay, stips. So these are the two pendant stips ऐसे resemble होते हैं, जिनको बोलते हैं Didymograptus. Okay, so these are basically graptolites. So option, which one? Option P3. Okay, and R2. Okay, so B answer is right. Okay, Serratic 4 and Q1. Yes, B is correct options. Okay, so you can see a particular आपको morphological characters याद रखने geomorphology में. Okay, so आप बहुत सारे questions due to this only you can solve very easily. Okay, morphological characters. So you can see this is the Didymograptus, which is extinct genus of the graptolite. आपको दिख रहा है, this one is look like a pendant. Okay, so these are the spicula. Okay, spicula, which is you can say this is the cap like structure. Okay, cap like structure. And these are the theca, and these are the stipes. These are two stipes. Sometimes ये कैसे दो होते हैं, एक suppose this is one stipe, and इसमें जो theca है, now they are showing inward ऐसे, ये जो this theca है, right? कुछ ऐसे भी होते हैं, and some showing this direction. Okay, so this will be varied, and this is spicula. हमने ग्रेप्टोलाइट नहीं पढ़ा गाइस, राइट? ग्रेप्टोलाइट, पर इससे क्वेश्चंस मुझे बहुत रेयर दिखे, बहुत रेयर. ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग fossil genera is an invertebrate? You have to choose which one is the invertebrate. B. Can you repeat, guys? B. B. Okay, spondylus. Okay, spondylus ये क्या है? Spondylus basically it will be bivalve. Okay, and stegodon क्या है? Elephant, right? And this one is the mammal. Mammal है जिनको हम बोलते हैं mastodon. Okay, telemastodon यहाँ पे ही है, mastodon. And I have confusion this one. मेलागोडॉन. ओके, मेलागोडॉन जनरली अगर आप अभी गूगल करोगे तो ये दिखा रहा है कि दिस विल बी टिथ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ये किसी पर्टिकुलर टिथ है, बट आंसर में दिस इज जैम क्वेश्चंस, राइट? तो आंसर ए और बी है.
and this is subclass of, this is genus of the Lamnibranchia. Okay, Lamnibranchia, जनरली पेलिसिपोडा, पेलिसिपोडा का एक्सटिंक्ट है. ओके, extinct genus है. This is the Megalodon. Extinct genus of Lamnibranchia, which is generally come under the Peleocypoda. Okay. Spondylus is the bivalve. Spondylus क्या शो करते हैं guys? टेक्सोडॉन्ट में आप बता सकते हो, मीन्स डेंटिशन. Spondylus, this is showing isodont. Okay, isodont, Spondylus, Archatexodont. Okay. गूगल में कुछ और है, बट जैम के आंसर में ए बी है. ओके, सो यू कैन सी वंस अगेन. गूगल करोगे तो आपको दिस इज शोइंग अ टिथ. ओके, सो टिथ तो वर्टिब्रेट के होंगे, लाइक दैट मे बी invertebrate, but you have to IIT through if you see the answer in the IIT JAM, so it will be A and B, Spondylus and Megalodon. Okay, so okay, move next question. Which one of the following trilobita have 2 or 4 thoracic segment? So thoracic segment कैसा होता है? This is thorax part. Okay, suppose this is thorax part, यहाँ से आता है ezidium, right? Ezidium. एंड यहाँ पे हमारा सेफ्लॉन है. थोरेक्स इज द सेगमेंटेड पार्ट. ओके, ऐसे जो सेंटर से है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 लोब, राइट? 1 लोब 2 3. ओके, सो यहाँ से जो सेगमेंटेड पार्ट होते हैं थोरेक्स, इनको हम बोलते हैं थोरेक्स. ओके, दीज आर द थोरेसिक सेगमेंट. सो कौन से ट्राइलोबाइटा में जनरली 2 to 4 थोरेसिक सेगमेंट हमें दिखते हैं? एंड वन मोर कंडीशन इज देयर, दे आर आइसलेस. उनके पास आइस नहीं है. आई नहीं है तो यू नो वन इज वेरी जनरल, बहुत ही इजी, बहुत कॉमन है ट्राइलोबाइटा का एग्जांपल विच इज नॉट हैविंग आई. Agnostus. Yes, agnostus, which is don't have eyes. And second one option, actually this is also MSQ. Microdiscus, ma'am. yes, micro discus. Okay, so these are having, अब यहाँ पे आपको एक चीज तो मिल गया कि these are the eyeless, but you have to know these two also. Okay, there are 2 or 4 thoracic segment, so these are having generally between 2 to 4 thoracic segment. thoracic segment आपको पता चल गया. Okay, so ये होते हैं जनरली. हमारे पास 2 है, पीसी जेन में 2 है. दिस इज जनरली 2 to 4, जो आपका यही आ गया हमारा एग्नोस्थस. and generally it will be 42 is generally showing by Ollinellus. Okay, Ollinellus, जो अभी हमने डायग्राम में देखा, this one is the Ollinellus. Okay, these are having 42, these are the thoracic segment. Okay, so these are having 42 thoracic segment. So these are the Microdiscus and Agnostus. Okay, so next question, match the morphological feature and life process, group 1 and group 2 again. Okay, C, ma'am. T or C. Yes, ma'am. ओके, सो सी मोल्टिंग क्या था हमारा? स्केडिंग. ओके, जो शेल्डिंग करते हैं, जो स्किन शेल्डिंग करते हैं, जनरली दे आर ट्राइलोबाइट. क्योंकि ट्राइलोबाइट ऑर्थ्रोपोड है. ओके, ऑर्थ्रोपोड जनरली क्या होते हैं? इंसेक्ट. ओके, तो इंसेक्ट में ये फीचर्स होता है बहुत सारे इंसेक्ट में कि दे आर शेडिंग, जो उनके पुराने एक्सोस्केलेटन होते हैं वो जनरली उनको स्केड कर देते हैं, राइट? सो जेट प्रोपल्शन हमारा शो करता है सेफलोपोड. हमने इसका एक वीडियो भी देखा था. ओके,
एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इकाइनोडर्मेटा, ओके। इकाइनोडर्मेटा का वन मोर फीचर, दे आर रेडियली स्पाइरल, ओके, रेडियली पेंटामेरस और रेडियली पेंटा स्पाइरल, ओके। जिसमें जनरली 5 लाइनों से वी आर सिमेट्री, जनरली इफ वी वांट टू सी मिरर इमेज, दे आर जनरली रेडियल 5-fold रेडियल सिमेट्री, ओके, 5-fold radial symmetry is shown by this echinodermata, okay। गैस्ट्रोपोड जनरली एसिमेट्रिकल होता है, ब्रैकियोपोड हमारा होता है सिमेट्रिकल होता है, ओके। एंड लोपोफोर गाइस, टोपोफोर is the brachial, okay, brachiopods. So Q4, P3, P2, wait guys, C answer is right, P3, P2, Yes, ma'am. option C, okay। So guys, that's for all today. Now paleontology is totally completed, okay। So एक छोटा सा टेस्ट है, देन वी आर गोइंग टू मूव। आप पहले सेडिमेंट्री पढ़ना चाहते हो या मेटामॉर्फिक गाइस? Metamorphic, ma'am. Okay, so done. Next class we are going to see metamorphic, okay, so be there Metamorphic कब से स्टार्ट होगा मैम? next class पेलेंटियो में आपको कुछ है कोई डाउट, और अगर इफ यू वांट टू एनी फर्दर क्लासेस इन पेलेंटोलॉजी और क्वेश्चन सॉल्व करने गए आपको, अगर पेलेंटो के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वी कैन सॉल्व इन वन क्लासेस मोर पेलेंटोलॉजिकल क्वेश्चंस, राइट? Otherwise we are going to move metamorphic, okay, one more class for the paleontology questions only, okay। Yes, ma'am. Okay, so after that we will going to see uh, PYQ, previous year question, just metamorphic, okay। Yes, ma'am. So any doubt guys? No, ma'am. Okay, okay, Bishesh, Malik and Giri, thank you for attending my class, so see you next time and good night guys. Good night, ma'am. Good night everyone, good night.